नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, FY बीकॉम में FEC सब्जेक्ट के अंदर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 4 है, जिसको हम आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी जो साहस स्मार्ट स्टडीज पैम्पलेट है यूनिट 4 के, उसको अपने पास रखें और मेरे साथ साथ इस पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना। इस पूरे यूनिट को मैं 2 पार्ट में कवर करने वाला हूं और जो भी ये 2 पार्ट बहुत अच्छे से और ध्यान से देख लेता है, उसको इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी MCQ आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे जो हमारा यूनिट है वो यूनिट कवर कर रहा है इंट्रोडक्शन टू स्टडी स्किल्स। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ाई बहुत करते हैं, बट पढ़ाई ये भी एक स्किल है, एक कड़ाच है। तो ऑब्वियस है कि कोई भी स्किल अगर बेहतरीन लेवल पे परफॉर्म हम करेंगे तो उसमें से हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। तो स्टडी करने में भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यही दिक्कत करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो टॉपिक पढ़ने के लिए दिया है, क्वेश्चन दिया है, वो रट्टा मार लेते हैं। टीचर भी है, वो इसको 1-2 बार बोल देते और आपको बोल देते थे 2-2 बार 4-4 बार लिखो, रट लो, एग्जाम में स्कोरिंग करना है, पास होना है। पर दोस्तों, ये आप रट्टेबाजी कर रहे हो, गोखण पट्टी थाई छे। और वो 3 इडियट मूवी में बोला है ना कि इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा नहीं, सिर्फ दिमाग में प्रेशर बढ़ेगा, और हम प्रेशर कुकर नहीं है। तो यहां पे अगर आपको बेस्ट लेवल का स्टडी लेना है, बेस्ट लेवल का नॉलेज बढ़ाना है विथ मैक्सिमम स्कोरिंग इन एग्जाम, तो आपको ये पढ़ाई करने की कुछ टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, जो इस यूनिट के अंदर हमने कवर की है और मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से ये सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला ही टॉपिक है स्टडी स्किल्स। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे लर्न हाउ टू लर्न, मतलब पढ़ाई करने से पहले कैसे पढ़े ये पढ़ो। શું કીધું ખબર પડી? ભણતા પહેલા કેવી રીતે ભણવાનું એ ભણો। ડાયરેક્ટ ભણશો પણ ભણવાનું કેવી રીતે એ જ નથી ખબર, તો કેવી રીતે ભણશો? તો ચાલો આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ હાઉ ટુ લર્ન। તો सबसे पहले क्या बोला है कि स्टडी स्किल्स एम्स टू एनहांस। एनहांस નો મતલબ શું થાય? ઇન્ક્રીઝ। ઇન્ક્રીઝ નો મતલબ શું? વધારવું। एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स एबिलिटी टू स्टडी एंड लर्न। स्टूडेंटની ક્ષમતા બે વસ્તુની વધારવાની છે ની, એક સ્ટડીની અને બીજી લર્ન એટલે કે શીખવાની। તો અહીંયા કહેવા શું માંગે છે કે સ્ટડી સ્કિલ્સ જો તમે શીખશો ને તો એનાથી તમારી ક્ષમતા ભણવાની અને શીખવાની બંને વધી જશે। તમે નોર્મલ લેવલ પર ભણતા હોય અને તમે આ સ્ટડી સ્કિલ શીખી લીધા પછી તમે ભણો, અભ્યાસ કરો, તો એનાથી તમારી ભણવાની અને શીખવાની ક્ષમતા ખૂબ જ વધી જશે। એટલે શું કીધું છે? ઇટ કોમ્પ્રાઇઝેસ। કોમ્પ્રાઇઝ નો મતલબ ઇન્ક્લુડ, ઇન્ક્લુડ નો મતલબ સમાવેશ કરવો। શું કીધું છે? એ શેનો સમાવેશ કરે છે? સમાવેશ કરવો। આ સ્ટડી સ્કિલમાં કઈ કઈ વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે? તો ડિક્શનરી સ્કિલ, એટલે કે આપણે ગાલાની, ઓક્સફોર્ડની ડિક્શનરીમાં જે શબ્દો શોધીએ છીએ ને કે મને આ વર્ડનો મતલબ નહીં ખબર પડી, તો હું ડિક્શનરીમાં એ વર્ડનો મતલબ જોઉં, તો એ ડિક્શનરી સ્કિલ। ઓનલાઈન રિસોર્સિસ, ઓનલાઈન રિસોર્સિસ મતલબ ગૂગલ છે, સાહસ સ્માર્ટ સ્ટડીઝ એપ છે, જેના થ્રુ તમે નવી નવી વસ્તુઓને શીખો છો, જાણો છો। રીડિંગ એન્ડ લિસનિંગ સ્કિલ, તમે આપણી આ જે સાહસની નોટ્સ છે એને એકદમ ધ્યાનથી વાંચો છો, જેની અંદર બધું હાઇલાઇટ કરેલું છે, વર્ડ્સના મીનિંગ લખેલા છે, કલરફુલ પેમ્પલેટ છે, તો એને તમે રીડિંગ કરો છો। આપણા સેશન છે એને ધ્યાનથી સાંભળો છો, હું જે સમજાવી રહ્યો છું એને તમે ધ્યાનથી સાંભળો છો। રેફરન્સિંગ સ્કિલ, તમે રેફરન્સ લો છો કે આ માહિતી ક્યાંથી આવી। જેમ કે આ આપણી નોટ્સ છે તો આપણી MS યુનિવર્સિટીની જે બુક રેકમેન્ડ કરી છે કોમર્સ ફેકલ્ટીએ, એના ઉપરથી જ આ નોટ્સ બનાવેલી છે। તો રેફરન્સ સ્કિલ કે ભાઈ આ કન્ટેન્ટ ક્યાંથી આવ્યું, આ બધી વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે સ્ટડી સ્કિલમાં। કઈ કઈ વસ્તુઓ કીધું? MCQ માટે બી કામ લાગી શકે છે કે સ્ટડી સ્કિલ્સ ઇન્ક્લુડ્સ ડિક્શનરી સ્કિલ્સ, ઓનલાઈન રિસોર્સિસ, રીડિંગ લિસનિંગ સ્કિલ્સ એન્ડ રેફરન્સિંગ સ્કિલ। સ્ટડી સ્કિલ્સ આર એન ઇમ્પોર્ટન્ટ સેટ ઓફ ટ્રાન્સફરેબલ, શું કીધું છે? ટ્રાન્સફરેબલ life skills necessary for comprehending, remembering and representing the information in the process of learning। ટ્રાન્સફરેબલ લાઈફ સ્કિલ, ટ્રાન્સફરેબલ મતલબ તમે એમાં ચેન્જ કરી શકો છો। મને તો ભણતા જ નથી આવડતું, કઈ વાંધો નહીં, કેવી રીતે ભણવાનું તમે શીખી શકો છો, વાંચવાનું કેવી રીતે શીખી શકો છો, લખવાનું કેવી રીતે તમે શીખી શકો છો। મીન્સ આ બધી સ્ટડી સ્કિલ કેવી છે? ટ્રાન્સફરેબલ લાઈફ સ્કિલ, જેને તમે પરિવર્તન કરી શકો છો, તમારી સ્કિલને વધારી કે ઘટાડી પણ શકો છો। સ્ટડી સ્કિલ્સ આર ઓલ્સો કોલ્ડ, યાદ રાખજો, એકેડેમિક સ્કિલ। CQ માટે કામનો પોઈન્ટ છે
સ્ટડી સ્કિલ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ એકેડેમિક સ્કિલ. એકેડેમિક સ્કિલ મતલબ અભ્યાસની કળા. that can be learned in a short time and can be applied to all or almost all the fields of study. મતલબ કે તમે આ એકેડેમિક સ્કિલને પહેલું તો શોર્ટ ટાઈમમાં ટૂંકા સમયમાં શીખી શકો છો અને પછી ગમે તેનો અભ્યાસ કરો છો. તમે કોમર્સમાં હોવ, સાયન્સમાં હોવ કે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં હોવ, તમે આ સ્ટડી સ્કિલ્સનો યુઝ કોઈ પણ સ્ટડી માટે, ચાહે તમે બીકોમ કરો છો, સીએ કરો છો, સીએસ કરો છો, બધા જ માટે આ સ્ટડી સ્કિલ્સનો ઉપયોગ કરી શકો. કારણ કે સ્ટડી સ્કિલ આવડી ગઈ, ભણવાનું કેવી રીતે આવડી ગયું, તો તમે કોઈ પણ વસ્તુ ભણી શકો છો. ખ્યાલ આવી રહ્યો છે? સ્ટડી સ્કિલ્સ હેલ્પ ઇન ઓગમેન્ટિંગ. જો ઓગમેન્ટિંગ વર્ડનો મતલબ પણ થાય વધારવું, ઇન્ક્રીઝિંગ. આ બધા શબ્દો યાદ રાખવાના દોસ્તો. તમને સિમિલર વર્ડ્સમાં સિનોનિમ, સમાનાર્થી શબ્દોમાં કામ લાગી શકે છે. ઓગમેન્ટિંગ મતલબ વધારવું, ઇન્ક્રીઝિંગ. વન્સ પરફોર્મન્સ not only in learning language and communication skills but also applied to all or almost all field of study. મતલબ જો તમે આ વસ્તુઓ શીખો છો, સ્ટડી સ્કિલને એપ્લાય કરો છો, અનુકરણ કરો છો, તો એનાથી તમે કોઈ પણ ભાષા પણ શીખી શકો છો અને કોઈ પણ વસ્તુનો અભ્યાસ કરો તમે સરસ રીતે શીખી શકો છો. ખ્યાલ આવ્યો? હવે આમાં નેક્સ્ટ આપણને કીધું છે વોટ આર સ્ટડી સ્કિલ્સ. સ્ટડી માટેની સ્કિલ્સ એટલે સ્ટડી સ્કિલ શું છે? તો એની માટે ત્રણ વસ્તુઓ મહત્વની છે. પહેલું આપણે સમજીએ કે સ્ટડી શું છે, પછી સ્કિલ શું છે અને સ્ટડી સ્કિલ શું છે. શું કીધું? પહેલા સ્ટડી શું છે તો જો, ધ ડિવોશન ઓફ ટાઈમ. ડિવોશન ઓફ ટાઈમ એટલે સમય આપવો, પણ ડિવોટ કરવો એટલે દિલથી સમય આપવો. દિલથી સમય આપવો. એન્ડ અટેન્શન ઓફ ગેઇનિંગ નોલેજ. જ્ઞાન મેળવવા માટે, ગેઇન એટલે મેળવવું, જ્ઞાન મેળવવા માટે તમે શું કરો છો? અટેન્શન એટલે ધ્યાન આપો છો. ઓફ એન એકેડેમિક સબ્જેક્ટ especially by the means of books. મતલબ બુક્સ કે પેમ્પલેટ્સ દ્વારા જે પણ તમારો એકેડેમિક સબ્જેક્ટ છે, જેમ કે અત્યારે એફઈસી સબ્જેક્ટ છે, એનું તમે નોલેજ લેવા માટે, એટલે કે નોલેજ, ગેઇનિંગ નોલેજ, આ નોલેજ મેળવવા માટે તમે આ મારો સેશન જોવામાં છે ડિવોશન આપી રહ્યા છો, ટાઈમનું. મતલબ દિલથી તમારો સમય આપી રહ્યા છો કે ભાવિન સર જે પણ ભણાવી રહ્યા છે હું એને મેક્સિમમ લેવલ પર સમજવાની, જાણવાની કોશિશ કરો. તો એને શું કહેવાય? તમે શું કરી રહ્યા છો? સ્ટડી કરી રહ્યા છો. પણ ક્યારે? જ્યારે તમે દિલથી કોઈક વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવવા માટે સમય આપો તો એને કહેવાય કે તમે સ્ટડી કરી રહ્યા છો. બીજું છે, સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ સ્કિલ્સ. તો સ્કિલ શું છે? તો એબિલિટી ટુ ડુ સમથિંગ વેલ. કંઈક પણ સરસ રીતે કરવું, સારી રીતે કરવું. જો कोई पण कार्य बे रीते करी सको. मतलब काम करना है तो ठीक है, करना है इसलिए कर देते हैं, और दूसरा बहुत अच्छे से करना है. मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम में तो फटाफट पढ़ना है, मम्मी पापा डांट रहे हैं, टीचर ने बोला है तो ठीक है, अभी दिखावा करने के लिए पढ़ लेते हैं, हाँ मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया पर एग्जाम में मार्क्स नहीं आए. या दूसरा, मेरे को बेस्ट तरीके से मैक्सिमम आउटकम मिले, कम से कम एफर्ट्स लगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है. जैसा साहस स्मार्ट स्टडीज में हम सिखाते हैं कि स्मार्ट तरीके से कम से कम टाइम पे आप मैक्सिमम आउटकम निकालते हो, तो उसी को कहते हैं क्या? स्किल. क्या पढ़ाई स्किल से कर रहे हो, गधा मजदूरी नहीं करनी है. वो 3 इडियट्स में दिखाया ना, रेंचो कैसे पढ़ता था, बहुत एंजॉय करता था, बट हमेशा फर्स्ट रैंक लाता था क्योंकि वो दिल से पढ़ाई करता था. बाकी सब लोग टेंशन में पढ़ते थे या रट्टा मारने के लिए पढ़ते थे. देखा था ना आपने? तो स्किल क्या है कि आप कोई भी चीज को बेहतरीन लेवल पे करते हो. एंड थर्ड इज स्टडी स्किल्स. तो स्टडी स्किल्स रिफर्स टू दोज थिंग्स that individuals do when they have to locate, organize and remember the information. information मतलब information, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो ये information को आप locate करते हो. locate करते हो मतलब यहां पे है वो. organize करते हो प्रॉपर, एंड याद करते हो, तो उसको कहते हैं स्टडी स्किल्स. इट मे इंक्लूड्स such things as using a table of content, outlining or using a strategy such as KWL, ये हम आगे सीखेंगे, या SQ3R. ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है पढ़ाई की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि सेकंड पार्ट में, इस यूनिट के सेकंड पार्ट में मैं डिटेल में डिस्कस करवाने वाला हूं. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्किल का इस्तेमाल करके आप कोई भी चीज की पढ़ाई को बेहतरीन लेवल की बना सकते हो. SQ3R, टू रीड द चैप्टर एंड रिमेंबर व्हाट वाज इन इट. तो आप ये टेक्निक का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते हो तो इसको कहते हैं स्टडी स्किल्स. एंड A study skill is an umbrella term used for wide range of set of skill. देखो umbrella term मतलब umbrella के नीचे क्या होता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है. उसी तरह से यहाँ पे स्टडी स्किल ये भी एक umbrella term है जिसके अंदर हम वाइड रेंज ऑफ सेट ऑफ स्किल मतलब बहुत सारी अलग अलग स्किल्स को कवर कर लेते हैं.
बीइंग यूज्ड टू एनहांस, एनहांस मतलब વધારવો, ઇન્ક્રીઝ કરવું લર્નર્સ એબિલિટી ટુ સ્ટડી ઇન એન ઇફેક્ટિવ, પ્રોડક્ટિવ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્ટિવ વે. ઇફેક્ટિવ અસરકારક રીતે, પ્રોડક્ટિવ એટલે વધારે લાભ થાય એ રીતે नहीं, તમારે ભણવાનું કરવાનું. હવે એની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ આવે છે तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बोली है नोट मेकिंग, ये हम आगे डिस्कस करने वाले, इसी यूनिट में पढ़ना है. नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, समराइजिंग, लाइब्रेरी एंड रेफरेंसिंग स्किल, यूजिंग ऑनलाइन एंड अदर लर्निंग रिसोर्सेज, जैसे कि सास स्मार्ट स्टडीज ऐप है या ऐसा गूगल है, कुछ भी आर सम ऑफ द स्किल्स इंक्लूडेड अंडर द टर्म स्टडी स्किल. तो ये याद रखना कि स्टडी स्किल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है. नोट मेकिंग, नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोनों, समराइजिंग, लाइब्रेरी एंड रेफरेंसिंग स्किल और यूजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज, ये सारी चीजें स्टडी स्किल्स के अंदर कवर होती है. एंड स्टडी स्किल्स कैन बी कंसीडर्ड एज स्किल्स फॉर जनरल एकेडमिक पर्पस. देखो जनरल एकेडमिक पर्पस मतलब आप फिर उसको कोई भी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि ये स्टडी स्किल सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए काम की है या ये स्टडी स्किल सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए काम की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हर एक एजुकेशन, हर एक स्टडी के लिए ये स्टडी स्किल का इस्तेमाल आप कर सकते हो. मतलब दिस इज जनरल एकेडमिक स्किल. आप साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, डिप्लोमा में हो, कुछ भी पढ़ाई करो, बहुत ही काम का है ये. तो अभी दोस्तों हमको समझना है कि व्हाई आर दिस स्टडी स्किल सो इंपॉर्टेंट. ये स्टडी स्किल क्यों सीखनी चाहिए. ऑब्वियसली यार, स्टडी टेंशन फ्री बनानी है, नॉलेज लेना है, रिजल्ट बढ़ाना है लाइफ में, उससे अपने को आउटकम लेना है, तो इसके लिए स्टडी स्किल काफी जरूरी है. तो देखो, स्टडी स्किल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न हायर एजुकेशन सिनारियो. अगर आपको मॉडर्न टाइम में हायर एजुकेशन लेना है तो अगर आप पुरानी टेक्निक्स रट्टेबाजी करने जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा दोस्तों, आपका रिजल्ट नहीं बढ़ेगा. सिर्फ नॉर्मल बीकॉम की डिग्री मिलेगी, आउटकम कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ाई का प्रेशर मिलेगा. आपको स्टडी स्किल का इस्तेमाल करके पढ़ाई करनी है तो आप कोई भी मॉडर्न एजुकेशन, बीकॉम के साथ साथ आप सीए करो, सीएस करो, या कुछ भी पढ़ाई करना चाहते हो, गवर्नमेंट एग्जाम में जाना चाहते हो या एमबीए करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, इसके लिए आपको फायदा हो सकता है. एंड दे हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एफिशिएंटली एंड इंप्रूव द एकेडमिक. अब ये स्टडी स्किल से आप पढ़ाई करोगे तो आप और अच्छे से વધારે ક્ષમતાથી ભણી શકશો और आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, मतलब कि आपका रिजल्ट, आपका नॉलेज, ये भी टेरिफिक लेवल पे बढ़ेगा. आपको रिजल्ट दिखेगा सिर्फ डिग्री के फॉर्म में नहीं, बट आपके नॉलेज के फॉर्म में भी. स्टडी स्किल्स बूस्ट, बूस्ट मतलब વધારો. बूस्ट का मतलब क्या, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, ऐसा. बूस्ट मतलब વધારવું, इंक्रीज. क्या बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी નો मतलब થાય ક્ષમતા. આપણે નહીં કહેતા पर्सन બહુ કોમ્પિટન્ટ છે, કોમ્પિટન્ટ છે मतलब सक्षम છે, तो कॉम्पिटेंसी मतलब क्षमता, कैपेसिटी इंग्लिश में कहे तो. एंड गिव सेल्फ एस्टीम. आपको एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी कि यार देखो, मैं पढ़ाई करता हूं, बेस्ट तरीके से पढ़ाई करता हूं, मेरा नॉलेज भी बढ़ रहा है और मेरा रिजल्ट भी बढ़ रहा है. जैसे 3 इडियट में आमिर खान वो रेंचो करता था, वैसा वो बोलता था ना कि पता है कि मैं फर्स्ट क्यों आता हूं, क्योंकि मैं मशीनों से प्यार करता हूं. वो अपने दोस्त को बताता है, पता है तू क्यों फर्स्ट नहीं आता है, क्योंकि तू डर डर के पढ़ता है. दूसरा को बोलता है कि तू प्यार किसी और से करता है और शादी मशीनों से कर रहा है. तो ये चीज है कि यहां पे स्टडी स्किल से क्या होगा कि आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी कि देखो मैं आगे हूं क्योंकि ये रीजन है, मैं अच्छे से काम करता हूं. स्टडी स्किल्स हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट in the form of knowledge and in the form of result percentage for their efforts in their studies. मतलब आप जो efforts लगाते हो ना, कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होगा कि सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, पर रिजल्ट नहीं आता है या नॉलेज कुछ भी नहीं है. तो यहां पे इसलिए क्योंकि आपने स्टडी स्किल्स को अच्छे से समझा नहीं है. मैं खास रेकमेंड करूंगा कि ये साहस के जो हमारे दोनों सेशन है ना, ये यूनिट 4 के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को बहुत ध्यान से देखना, ना कि सिर्फ एग्जाम के लिए, बट इससे आपकी ओवरऑल पूरी स्टडी, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट की या कोई भी स्ट्रीम की पढ़ाई करते हो, आपको जबरदस्त फायदा होगा आपका नॉलेज बढ़ाने में, रिजल्ट बढ़ाने में, कम से कम एफर्ट्स पे. तो ये स्टडी स्किल्स यही करता है, हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू अचीव मैक्सिमम रिजल्ट या मैक्सिमम आउटपुट फॉर देयर एफर्ट्स. अब बात करते हैं इसी टॉपिक में, व्हाई डू वी नीड टू लर्न स्टडी स्किल्स, या तो फिर पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं. कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हेतु. हम लोग ये स्टडी स्किल्स को सीखेंगे, काय को सीखेंगे, क्यों सीखेंगे, फालतू का टाइम पड़ा है क्या अपने पास, मेरे को उसके साथ चैटिंग भी करनी है,
उस वाली को घुमाने भी ले जाना है, इसके लिए गिफ्ट भी खरीदनी है। मजाक की बात है, बट क्वेश्चन ये है कि हम लोग स्टडी स्किल्स क्यों सीखेंगे, काय को जानना है। तो देखो, पहला स्टडी स्किल का पर्पस क्या है, टू एक्वायर स्किल एंड डेवलप अ हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये याद रखना, कौन सी हैबिट डेवलप करनी है, हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन। रिट्रीविंग એટલે याद રાખવું, रिट्रीव मतलब याद રાખવું, मतलब તમે ઇન્ફોર્મેશન ને સમજી શકો અને યાદ રાખી શકો, ગોખણપટ્ટી ના કરવી પડે, બાય ડિફોલ્ટ નેચરલી તમને યાદ રહી જાય, એટલા માટે સ્ટડી સ્કિલ શીખવાની છે। ટુ લર્ન સ્ટ્રેટેજીસ, સ્ટ્રેટેજીસ શીખવાની છે, શેની માટેની સ્ટ્રેટેજીસ, ફોર ટેકિંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન, ઓર્ગેનાઇઝિંગ ઇટ, રિટેનિંગ, રિટેનિંગ એટલે જાળવી રાખવું પોતાની પાસે, એન્ડ ડીલિંગ વિથ ધ અસેસમેન્ટ। मतलब તમે સ્ટ્રેટેજી બનાવી શકશો કે હું કેવી રીતે માહિતી મેળવું, માહિતીને ઓર્ગેનાઇઝ કેવી રીતે કરું, એને પ્રેઝન્ટ કેવી રીતે કરું, આ બધું જ તમને સ્ટડી સ્કિલ્સ આવડશે તો ઓટોમેટિક આવડી જશે। ટુ લર્ન ઇન્ક્રીઝ ધ પોસિબિલિટી ઓફ એક્વાયરિંગ સક્સેસ, ઇન્ક્રીઝ ધ પોસિબિલિટી ઓફ એક્વાયરિંગ સક્સેસ ઇન ધ એક્ઝામિનેશન। પરીક્ષામાં સફળતાની શક્યતા વધી જશે। તમારું એક્ઝામમાં સારામાં સારું રિઝલ્ટ આવે એની પોસિબિલિટી ઘણી વધી જશે જો તમને સ્ટડી સ્કિલ્સ ખબર હશે તો। ટુ ફાઇન્ડ ન્યૂ વેઝ ઓફ થિંકિંગ એન્ડ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ, તમારે વિચારવાની નવી રીતો આવડશે, ન્યૂ વેઝ ઓફ થિંકિંગ એન્ડ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ। તો કોઈ પણ સમસ્યા આવી છે તો સમસ્યાને આપણે કેવી રીતે સોલ્વ કરી શકીશું, કારણ કે આપણે ભણવાનું શીખ્યા છે, ગોખણપટ્ટી નથી કરી, સ્ટડી સ્કિલ્સ છે આપણી પાસે, તો એ સ્કિલ્સનો યુઝ કરી અને તમે તમારા લાઈફના પ્રોબ્લેમ્સને પણ સોલ્વ કરી શકશો। टू लर्न द एबिलिटी ऑफ सेल्फ मैनेज एंड प्रॉब्लम सॉल्व, हम अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये भी आप स्टडी स्किल्स अगर आती है तो अच्छे से मैनेज कर पाओगे। कई बार आप अपने दोस्तों को देखोगे, यार मैं तो बहुत डिप्रेस हो गया हूं, यार मेरा तो मूड ही नहीं है, आज मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया, आज उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, मुझे तो कुछ लगता ही नहीं है कि मेरा लाइफ में कुछ हो पाएगा। इतना टेंशन लेके घूमते हैं स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, यूथ, काय को कर रहे हो यार। स्टडी स्किल सीख लो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको अपने आप को मैनेज करना है इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। टू इंक्रीज, नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ एस्टीम, जो कि हमने ऑलरेडी आगे देख लिया, विच रिड्यूस द एंजाइटी। एंजाइटी मतलब बेचैनी घटाड़ी देसे, बेचैनी घटाड़ी देसे। कई बार यार एग्जाम आने वाली है, टेंशन होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, लिखना है, मुझे आता नहीं है लिखने का, क्या होगा मेरा, मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कोई बात नहीं है, आप स्टडी स्किल्स को फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आपका कॉम्पिटेंसी, आपका रिजल्ट, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और ये एंजाइटी, बेचैनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड लास्ट, टू कट डाउन द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड स्टडिंग एंड लिविंग मोर टाइम फॉर द थिंग्स इन योर लाइफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है ना कि पढ़ना है, रैंक लानी है तो 8-8 10-10 घंटे पढ़ना है, मेरे को गोल्ड मेडल लाना है। काय को यार 10-10 घंटे काम करते हो पढ़ने के लिए, गधा करता है, गधा मजदूरी करते हो आप लोग। आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से आप पढ़ते हो, जो कि स्टडी स्किल्स पे हम काम कर सकते हैं, जो कि सारा स्मार्ट स्टडीज आपको भी आपको करवाता है। तो उससे क्या होगा कि आप कम टाइम पे बहुत ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे। आपको देखना, आपके पास हमारा स्टडी प्लानर आ गया होगा तो एग्जाम के अगले दिन में सभी के सभी यूनिट्स, सभी के सभी स्टडी कंटेंट, ग्रामर, सारी चीजें आप 4 से 5 घंटे दो, टोटल आराम से आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया बिना किसी टेंशन के। कोई पॉइंट इसके बाहर का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करता है, स्टडी स्किल्स का इस्तेमाल करने से पढ़ाई करते हैं, जिससे आपका पढ़ाई के लिए जो टाइम देना है ना वो कम हो जाएगा, तो आपके पास टाइम बचेगा जिसका आप अपनी लाइफ के लिए टाइम दे पाओगे, अपने दोस्तों के लिए, अपनी कोई हैबिट के लिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट आना है, अच्छा लाना है, इसका मतलब ये नहीं कि डेली 10-10 घंटा पढ़ने वाला ही स्टूडेंट्स आगे जाएगा, नहीं। स्टडी स्किल्स जिसको आती है ना, कम टाइम से भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट ला सकता है। सारा स्मार्ट स्टडीज ऐप पे हम वही करते हैं कि कम से कम टाइम पे स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके क्या करेंगे, मैक्सिमम रिजल्ट लाएंगे। तो दीस आर द पर्पस, आ हेतुओं છે જેની માટે સ્ટડી સ્કિલ શીખવી બહુ જ જરૂરી છે। अभी हमारा दूसरा, यहां तक की चीजें पहले आप एक बार अच्छे से ध्यान से हमारे नोट्स में से, पैम्पलेट्स में से रिफर कर दीजिए। अब हम लोग सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है डिक्शनरी स्किल्स। क्या बोला है, डिक्शनरी स्किल्स। पर जो भी स्टूडेंट्स ये सेशन को YouTube पे देख रहे हैं उन लोगों के यहां पे ये सेशन खत्म हो रहा है। आगे का टॉपिक, ये पूरा वीडियो हमारी सास स्मार्ट स्टडीज ऐप पे कंटिन्यू ही है।
तो अगर आप अभी भी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें। साहस इंस्टीट्यूट में बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन के लिए अलग अलग स्टडी ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो आप अपने FY BCom के सेमेस्टर 2 के लिए या आगे की पढ़ाई के लिए साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम एजुकेशन आपको कहीं पे नहीं देखने मिलेंगे। वैसे क्लासरूम में आपकी पढ़ाई होगी या ऑनलाइन लाइव क्लासेस आप कहीं से भी ऐसा ही फील करोगे जैसे आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में प्रेजेंट हो। और तीसरा, साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें, लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। रुको, जो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के यूजर्स है उनके लिए तो ये सेशन अभी भी कंटिन्यू ही है। तो चलिए अभी हम लोग हमारा सेकंड नंबर का टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज डिक्शनरी स्किल्स। देखो दोस्तों, डिक्शनरी क्या है तो ये हमें पता ही है, जैसे वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी बुक किताब जिसके अंदर सब स्पेलिंग के मीनिंग आपको मिल जाते हैं। तो देखिए, डिक्शनरी स्टैंड्स फॉर अ बुक ऑफ वर्ड्स लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन एनी लैंग्वेज। देखो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल मतलब ABCD या गुजराती है तो क ख ग घ, इस तरह से अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये सारे के सारे वर्ड्स का लिस्ट अपने को जिस बुक में मिलता है इसको कहते हैं डिक्शनरी। एंड देयर आर डिक्शनरीज विच प्रोवाइड ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। मतलब हम लोग कई बार इंग्लिश टू गुजराती डिक्शनरी लेते हैं या फिर गुजराती टू इंग्लिश डिक्शनरी लेते हैं। मतलब कि आपको एक भाषा में से दूसरी भाषा में शब्दों का कन्वर्जन भी दिया होता है डिक्शनरी में, जिसके अंदर आपको वर्ड्स देखने को मिलते हैं, थ्रेसर्स देखने को मिलते हैं। ये याद रखना क्या है, थेसरस इज अ